Welcome to Entrance Yog. Today we'll be starting with legal aptitude wala part, and I'm new to all. I'll be teaching you legal aptitude and grammar wala portion for law entrance. Okay. Uh, Legal aptitude, we are the notes I'm providing or the material I'm showing here or the things I'm showing here, I'm strictly referring to AP Bhardwaj. That's what I referred to when I was. I'm also a law student, so when was appearing for this examination, I referred to AP Bhardwaj. Okay, uh, and see, we are not only dealing with topics, like, we're not only concerned with concepts. Ultimately, we need to apply those concepts to questions as well. Okay. So for that, we definitely require to practice questions. So after dealing with this particular concept thing, we'll be starting with question practice session as well. But like today, I'm teaching you what law taught is, and I'll be explaining you as like the basic details which you require to to appear for the examination. That's it. Because we as a law student, we also read law of tort in the first semester of exam of a law school. So if you are appearing for that, so you definitely not need to learn every concept, but just to have a better understanding what law is. You just go through some petty laws. ठीक है. So यहाँ पे अभी I'll be teaching you law of torts. इसमें आज मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी. कल मैं एक्सप्लेन करूंगी, एक्सप्लेन या फिर मैं बताऊंगी कि क्वेश्चंस, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस में कैसे लगेंगे. सो आई विल बी डीलिंग विद दोज कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. नाउ अब I'll if I'm explaining law of tort, first we have to understand what is tort, because you are coming, I don't know from which background you are coming, but any stream if you're coming from, ठीक है, either science, be it science, maths, or any other commerce stream or any other thing, you still are not aware what is the these Latin phrases means. But being a law aspirant, you have to be well versed with these legal phrases. True. So that's why we do have some legal maxims and phrases as well. Here the word tort comes from the Latin phrase that means to twist. What does this twist means? A twist means कि यहाँ पे कोई पर्सन ऐसा कंडक्ट करता है जो स्ट्रेट या लॉफुल नहीं है, बट ट्विस्टेड और क्रुक्ड है. दैट इज व्हाट टॉट इज. सो इंग्लिश में हम टॉट को कहते हैं टॉट एक रॉन्ग है. जो रॉन्ग डूअर, जो रॉन्ग कमिट करता है, वो कैसे कमिट करता है? He or she somehow violates the legal rights vested in another person. That is what tort is. Means if a person's legal right has been violated, then he can claim compensation in court because of some, because a tort, because the rise of action, a case of action arises, a right of action arises in court if a person's legal right has been violated. Okay. Now coming to definition of tort. Tort क्या है? Tort एक civil wrong है. Civil wrong means a wrong against a like society, जिसके लिए हमें mainly compensation मिलता है और injunction मिलता है. ठीक है. It's a civil wrong जो कि which is independent of implied contract, for which are appropriate remedies and action for unliquidated damages. ये एक civil wrong है जिसके लिए हम वी डू नॉट नीड अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. एंड इसके लिए एप्रोप्रिएट रेमेडी क्या है? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है. ठीक है. अब व्हाट डू वी मीन बाय अनलिक्विडेटेड डैमेजेस? वो डैमेजेस जो ऑलरेडी स्टैट्यूट में डिफाइन नहीं है. जैसे तुम लोगों को पता होगा या नहीं भी पता है, तो लॉ ऑफ टॉर्ट इज नॉट कोडिफाइड. मतलब what does this mean not codified? Codified नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो as such we do not have a statute for it. So for example, we have a statute for Indian Contract Act 1872. Okay, we have a Bear Act, but we coming to this, talking about this law of tort, we do not have any statute for this. So in this case, when a particular case comes in a court of law, the judges, it's the judges who decide the damages as required.
So that's why we say that we do not have any liquid damages, but we get unliquid damages in tort. ठीक है. What does Salmon say? Salmon is also very famous jurist. He explains tort. He says that tort is a civil wrong for which remedies a common law action for unliquidated damages and which is not exclusively of breach of contract or breach of trust or other mere equitable obligation. देखो मैंने कहा तुम्हें सिविल रॉन्ग तो कॉन्ट्रैक्ट भी है. सो हाउ विल वी डिफरेंशिएट टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट? तो टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस ये है कि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है. जहाँ पे ब्रीच ऑफ फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई रॉन्ग कमिट हुआ है जहाँ पे ऑलरेडी कोई इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं था या फिर इम्प्लाइड या एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं था एग्जिस्टिंग, और उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हमारा wrong doer agreed party है, he or she has gone through some or he or she legal right has been violated, वो नहीं हुआ है. उस केस में we can say that कि tort commit हुआ है. ठीक है. मतलब अगर सिविल रॉन्ग का केस है तो हम कैसे कैसे डिसाइड करेंगे केस ऑफ टॉर्ट? सो वी हैव टू सी दैट कि कॉन्ट्रैक्ट का केस तो नहीं है, पहले से कोई एग्रीमेंट तो नहीं था पार्टीज के बीच में. अगर पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट नहीं था और पर्सन जो एग्रीड पार्टी है उसका लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, देन इट्स अ केस ऑफ टॉर्ट. और इसके लिए जो कॉमन लॉ एक्शन क्या है, मतलब कॉमन लॉ एक्शन से कहते हैं बिकॉज हमने ये टॉर्ट जो है मेनली ये यूके का कॉन्सेप्ट है, ये हमने यहाँ वहां से इसको अडॉप्ट किया है. ठीक है. इनफैक्ट बहुत रेयर केस हम लोग को ऐसा तो रेयर केस हम लोग टॉर्ट का देखते हैं कोर्ट में. ठीक है. ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, या ऐसा कोई भी अदर मेयर इक्विटेबली ऑब्लिगेशन, ऐसा कोई ऑब्लिगेशन सिमिलर ऑब्लिगेशन ऐसा किस सिनेरियो नहीं होगा, देन इट्स अ टॉर्ट. ठीक है. What does Clerk and Lenstill says? A tort may be described as wrong independent of contract for which the appropriate remedy is common law action. ये कह रहा है कि tort क्या है? एक wrong है जो independent contract से independent होता है, ये वैसा wrong है जिसके लिए appropriate remedy क्या है? common law action. common law action इसे कहते हैं क्योंकि वहां पे unliquidated damages मिलता है, वहां पे as such predefined damages नहीं है, predefined punishment नहीं है, predefined compensation नहीं होता है, not have as such statute as do we have in India in other laws like Hindu law, Muslim law, law of contract, IPC, CRPC, etc. etc. एंड अब देखो टॉर्ट को डिफाइन सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 भी डिफाइन करता है, which says that टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जो एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है. ठीक है. दस हम ये कंक्लूड कर सकते हैं उस पेज से कि टॉर्ट क्या होता है. टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होगा. टॉर्ट ऐसा रॉन्ग है जिसके लिए वी वुड बी गेटिंग अनलिक्विडेटेड डैमेजेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. सिंपल. तो टॉर्ट की हमें 3 कीवर्ड्स याद रखने हैं मेनली. इट्स अ सिविल रॉन्ग एंड it is civil wrong which is different from mere breach of contract or breach of trust, and this particular wrong is redressable by an action for unliquidated damages, the damages which have not been predetermined in any such statute. Now coming to essentials of tort. टॉर्ट की एसेंशियल्स क्या होते हैं? एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट कहने का मतलब है कि टॉर्ट कमिट हुआ है ये हम डिसाइड कैसे करेंगे. सर्कमस्टांसेस में हम व्हाट विल बी सर्चिंग इन द सर्कमस्टांसेस कि टॉर्ट कमिट हुआ है. विल बी सर्चिंग मेनली 3 पार्ट्स. पहला, टू कंस्टिट्यूट अ टॉर्ट और सिविल इंजरी फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स आर नेसेसरी. क्या इंग्रेडिएंट्स नेसेसरी है? पहले, देयर हैज टू बी सम रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट. कोई रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन डिफेंडेंट ने कमिट किया हो. ठीक है. अब देखो डिफेंडेंट कौन होता है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ फाइट. ठीक है. तो जिसको एक्स ने, फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई के बीच में फाइट हुई, तो एक्स ने जिसको मारा, ठीक है, वाई को, तो वाई एग्रीव पार्टी हो गई. यहाँ पे वाई ने मार खाया, तो वाई विल गो टू कोर्ट एंड टू क्लेम कॉम्पेंसेशन और टू क्लेम एनीथिंग. ठीक है, टू ब्रिंग सूट. तो वहां पे वाई ने कंप्लेंट फाइल की, तो वाई विल बी प्लेंटिफ एंड जिसने मारा था एक्स वुड बी डिफेंडेंट बिकॉज ही वुड बी डिफेंडिंग हिज केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है. तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन होना चाहिए डिफेंडेंट के पार्ट पे. मतलब डिफेंडेंट कुछ तो रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन करे, रॉन्गफुल एक्ट करे या ओमिशन करे, मतलब जो ड्यूटी ऑफ केयर थी उससे वो सॉर्ट ऑफ वो डिप्राइव कर दे, या वो
नेग्लिजेंट हो उस पार्ट पे, विल बी डीलिंग विद इट आराम से, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में आई एक्सप्लेनिंग इट, ठीक है आराम। Now coming to next essential, that is wrongful act or omission must result in some legal damage to another. अब देखो ये कह रहा है कि wrongful, पहला तो essential क्या दिखना है कि डिफेंडेंट ने कोई wrongful act या omission commit किया हो, ठीक है। अब वो wrongful act और omission कोई legal damage result करना जरूरी है। अब ये legal damage क्या है? legal damage का मतलब होता है किसी प्लेंटिफ का लीगल राइट का वॉयलेशन। प्लेंटिफ हैज सम राइट्स, ठीक है, उसके लीगल राइट्स का जब वॉयलेशन होगा तो ही हैज सफर्ड लीगल डैमेज एंड फॉर दैट ही कैन क्लेम इन कोर्ट, ठीक है। फ्रॉम देयर राइट ऑफ एक्शन अराइजेज इन कोर्ट, ठीक है। अब उसके बाद है कि दैट wrongful act must be of such a nature as to give rise to a legal remedy in the form of action for damages. वो wrongful act इस तरह का होना चाहिए कि वो legal remedy, that give rise to a legal remedy, वो ऐसा एक्शन है जिससे तुम्हें लीगल रेमेडी मिल सके कोर्ट में। मतलब लीगल रेमेडी किस फॉर्म में मिले? लीगल रेमेडी डैमेजेस के फॉर्म में मिले। हियर डैमेजेस मेनली रेफर टू सम कंपनसेशन। टॉर्ट में वी यूजुअली गेट कंपनसेशन, ओके। So what we can see from this is essentials of tort, बेसिकली हम क्या समझ रहे हैं, डिफेंडेंट के पार्ट पे कोई रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन होना चाहिए। वो रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन से क्या हो रहा है, कोई लीगल डैमेज हो रहा है प्लेंटिफ को, ठीक है। लीगल डैमेज का मतलब क्या है? प्लेंटिफ का लीगल राइट का वायलेशन, ठीक है। अब ये वो रॉन्गफुल एक्ट ओमिशन ऐसा होना चाहिए कि वो रॉन्गफुल एक्ट ओमिशन की वजह से जो लीगल डैमेज हुआ है वो लीगल डैमेज ऐसा हो कि तुम कोर्ट में ले जाए तो हमें कोई लीगल रेमेडी मिले उस पर्टिकुलर डैमेज के लिए, उस पर्टिकुलर जो हमारा लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ है उसके लिए कोई रेमेडी मिले। and that remedy have to be unliquidated, that is not predetermined in any statute। मैं बार बार जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज पे पूरे अराउंड टॉट रिवॉल्व करता है, ठीक है। Now coming, as I said, I explained each term जो essentials है। पहला है wrongful act or omission। wrongful act or omission का मतलब होता है क्या है? In order to make a person liable for tort, he must have done some act which was not expected, or he must have omitted to do something which was supposed to do। एक person को tort के लिए liable करने के लिए उस person ने वैसा कोई काम किया हो जो वो expected नहीं था, जो वो नहीं that he was not supposed to do। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का प्रॉपर्टी है, ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी है एंड कोई एक्स वाई पर्सन, ठीक है, उस पे ट्रेसपास कर देता है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी में इंटर कर जाता है। इस तरह से इंटर करता है कि उसकी राइट टू एंजॉयमेंट से डिप्राइव कर रहा है उस पर्सन से, ठीक है, ओनर को डिप्राइव कर रहा है। तो एक्स वाई जेड जो पर्सन था, उस पर्सन का मतलब देखो, we are not expecting XYZ person to come to that owner's that particular property and deprive owner the right to enjoyment, that XYZ is not expected to do, and वो उसने wrongful act commit किया, मतलब there was some positive act on the part of XYZ। now coming to omission, omission क्या होता है? that we are supposed to do something and we have omitted it। for example, जब रेलवे ट्रैक होता है वहां पे एक पर्सन खड़े होते हैं जो दे आर सपोज टू होस्ट अ फ्लैग रेड कलर का। जब ट्रेन आ रही होती है तो एंड बैरिकेड लगाना होता है। अगर वो एक्ट वो ना करे और कोई एक्सीडेंट हो जाए, ऑल्दो वो एडमिन सिनेरियो ऑफ क्रिमिनल लॉ, बट मैं बता रही हूँ वो एक्ट ना करे, वो बैरिकेड ना लगाए, तो उसके पास ये ड्यूटी थी, उसके पास वी आर दैट पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू क्लोज दैट बैरिकेड when train was crossing through that particular track, but उसने वो नहीं किया, तो he has done omission। वहां पे omission है। कहने का मतलब ये है कि एक्ट में we says that कि कोई पॉजिटिव एक्ट कमिट करता है डिफेंडेंट, और यहाँ पे omission में जो उसको ड्यूटी ऑफ केयर दिया जाता है, जो ड्यूटी मिलता है कोई काम करने का, वो उस ड्यूटी से वो नेग्लिजेंट होता है, मतलब he omit to do something which he was supposed to do। I hope I'm making myself clear। अब यहाँ पे next line is a wrongful act may be a positive act or omission which can be committed by a person either negligently or intentionally or even by committing a breach of strict duty। देखो यहाँ पे मैंने बताया wrongful act क्या होता है, positive act होता है। omission क्या होता है? omission मतलब ये होता है कि पर्सन ओमिशन कैसे कर सकता है, या तो इंटेंशनली ओमिट करेगा कोई काम ब्रीच ऑफ ड्यूटी से, ठीक है, मतलब ड्यूटी से ओमिट करेगा इंटेंशनली, या फिर नेग्लिजेंटली ओमिट कर सकता है। तब नेग्लिजेंट था वो, मतलब इंटेंशनली नहीं था बट नेग्लिजेंटली उसने किया, या फिर सिर्फ स्ट्रिक्ट ड्यूटी उसको जो मिली है उससे वो सॉर्ट ऑफ ब्रीच कर दे उसको, ठीक है।
तो वहां पे उसने ओमिशन कमिट किया. अब here comes the word legal right. Legal right in the word of Austin is a faculty which resides in determinate party or parties by virtue of given law and which avails against the party other than the party or parties in whom it resides. देखो legal right क्या होता है? Legal right is sort of a virtue, is sort of a kind of advantage or sort of a, हाँ you can say advantage that is given by law. तुम्हें वो लॉ वो एक राइट एक एडवांटेज देता है, ठीक है. एंड वो पर्टिकुलर राइट और एडवांटेज जिस पार्टी में रिसाइड करता है दैट पर्सन हैज राइट, ठीक है, दैट पर्सन हैज पर्टिकुलर एडवांटेज एंड वो पर्टिकुलर राइट वो किसी और के अगेंस्ट अवेल करता है. वो द अदर पार्टी जिसके अगेंस्ट वो अवेल करता है, तो दिस पर्सन जिसके पास ये एडवांटेज है that person has legal right over some property, over his own body or anything which he avails against another party. वो party जो other party here refers that party has to be indifferent from the person who has legal right, ठीक है. अब यहाँ पे आई एम एक्सप्लेनिंग कि what is wrongful act or omission, ठीक है. एग्जाम्पल देखते हैं. A erects a wall on his land which obstructs a light onto B's house. Although it is undoubtedly a lawful act to erect a building on one's own land, but since the neighbor has enjoyed uninterrupted light for years, he has acquired the legal right to have this enjoyment. So, erection of construction by A on his own land is an invasion of right of B, hence not only damage but also an unlawful injurious act. Sorry. See, ए यहाँ पे अपने लैंड पे वॉल इरेक्ट करता है जो बी के घर की लाइट ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है. ऑल्दो ए का अपने लैंड पे वॉल इरेक्ट करना इज लॉफुल एक्ट, बट क्योंकि सिंस लॉन्ग टाइम बी हैज एंजॉयड दैट राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर राइट, क्योंकि लाइट उसके घर में हमेशा से आई है फॉर इयर्स, तो ही हैज गॉट अ राइट फॉर दैट. नाउ यहाँ पे ए का जो वो इरेक्शन ऑफ पर्टिकुलर दैट वॉल अपने लैंड पे इरेक्ट कराना उसका, वो इन अ वे बी के राइट में इन्वेजन कर रहा है, इन्वेड कर रहा है. तो इस वजह से क्या हो रहा है कि बी का राइट वॉयलेट हो रहा है, राइट ऑफ इंजॉयमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी वॉयलेट हो रहा है. तो इस सिनेरियो में क्या कह सकते हैं हम कि ए ने टॉर्ट कमिट किया, ठीक है. तो यहाँ पे उसने रॉन्गफुल एक्ट किया. I am explaining what is moral duty. It would be pertinent here to mention that a breach of merely moral or religious duty can't be considered under this head, but it must be duty primarily fixed by law. देखो मैंने बताया ना कि omission में there has to be breach of duty, but that duty need not to be a moral or religious duty. But वो duty fixed should have been primarily fixed by law. वो duty law fix करेगी. तो उस lawful duty की breach would be those circumstances that would be coming under the definition of omission, ठीक है. अब मैंने बताया wrongful act और omission क्या होता है. अब what is legal damage? Legal damage का मतलब क्या होता है? It is to be proved that there was a wrongful act causing breach of legal duty or the violation of legal right vested in the plaintiff. मतलब यहाँ पे क्या है कि वो wrongful act की वजह से जो प्लेंटिफ के लीगल राइट था उसका वॉयलेशन होना बहुत जरूरी है. तो वहां पे क्या होता है, लीगल डैमेज कॉज होता है. मतलब लीगल डैमेज का मतलब सिंपल लेमैन लैंग्वेज समझेंगे तो प्लेंटिफ की लीगल राइट का वॉयलेशन इज लीगल डैमेज. ओके, अब वी हैव, देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है. इन ऑर्डर टू टेस्ट टू नो वेदर द डिफेंडेंट शुड और शुड नॉट बी लायबल अंडर टॉर्ट, वी हैव टू सी टू मैक्सिम्स, ठीक है. अब हमें डिसाइड करना है कि पहले मैंने बोला कि पहले मैंने दो एसेंशियल एस्टैब्लिश कर लिए. पहला क्या है कि डिफेंडेंट हैज कमिटेड सम रॉन्गफुल एक्ट ओमिशन. उस रॉन्गफुल एक्ट ओमिशन की वजह से प्लेंटिफ को कुछ लीगल डैमेज हुआ, ठीक है. अब जस्ट इमेजिन कि तीनों एसेंशियल एस्टैब्लिश हो गई हैं, ठीक है. अब हाउ विल बी डिसाइडिंग कि डिफेंडेंट वुड बी लायबल और नॉट. सो डिफेंडेंट लायबल होगा या नहीं होगा, इन दोनों एसेंशियल्स के एस्टैब्लिश होने के बाद हम कैसे देखेंगे. पहले दो मैक्सिम है. पहला मैक्सिम है इंजूरिया साइन डैमनम, दूसरा मैक्सिम है डैमनम साइन इंजूरिया. इंजूरिया साइन डैमनम मींस
इंजरी विदाउट डैमेज मतलब लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ है बिना कोई डैमेज किए, मतलब बिना एज सच कोई मॉनेटरी लॉस नहीं हुआ है, कोई एज सच विजिबल लॉस नहीं हुआ है, बट स्टिल लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ है. Now let's read. Injuria means infringement of right conferred by law on the plaintiff or an unauthorized interference, howsoever trivial, with the plaintiff's right. Injury मतलब क्या, injuria मतलब क्या होता है? राइट का इन्फ्रिंज होना, ठीक है, वो राइट जो लॉ ने कन्फर किया है प्लेंटिफ पे, ठीक है, और उस पर्टिकुलर राइट पे ही हैज अनऑथर, मतलब उस पर्टिकुलर राइट पे डिफेंडेंट ने अनऑथराइजली इंटरफेयर किया है, चाहे ना वो कितना भी छोटा इंटरफेरेंस क्यों ना हो प्लेंटिफ के राइट पे, बट स्टिल दे वुड बी वॉयलेशन ऑफ हिज राइट. हिज हियर रेफर्स टू प्लेंटिफ्स राइट. तो वहां पे इंजरी हो गया है, ठीक है. इंजरी मतलब सिंपल ये है, लीगल राइट का वॉयलेशन, ठीक है. डैमनम मीन्स सम सब्सटैंशियल हार्म, लॉस और डैमेज इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी, कंफर्ट, हेल्थ और द लाइक. डैमेज का मतलब मैंने क्या समझाया, देयर हैज टू बी सम सब्सटैंशियल हार्म, कुछ हार्म होना जरूरी है. हार्म, लॉस या डैमेज किस रिस्पेक्ट में? मनी हो सकता है, कंफर्ट हो सकता है, हेल्थ, या फिर एसेट्रा, इसके जैसा कुछ भी एसेट्रा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस एंड द केसेस, ठीक है. Thus, when there has been injury or the violation of legal right and the same has not been coupled with damnum or the harm to the plaintiff can still go to court of law because no violation of right should go unredressed. देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर there's a scenario कि जहाँ पे इन लीगल राइट का वॉयलेशन हो गया है, but that particular violation of legal right has not been coupled with any harm to plaintiff, मतलब कोई substantial harm in respect of money, comfort और health etc में नहीं हुआ है, still just there has just because there was a violation of legal right of the plaintiff can still go to court of law and he claim compensation or whatsoever because no violation of rights should go unredressed. This is what we can see from injurious and damnum. मतलब हमने क्या सीखा कि इंजुरियस एंड डैमनम से क्या होगा, कोर्ट में प्लेंटिफ जा सकता है. अब इंजुरियस एंड डैमनम के दो लैंडमार्क केसेस हैं. पहला है कॉमन लॉ का केस है एशबी वर्सेस वाइट 1703. Plaintiff was a qualified voter at a parliamentary election, but a defendant, a returning officer, wrongfully refused to take plaintiff's vote. No loss was suffered by such refusal because the candidate for whom he wanted to vote won the election. Nevertheless, the plaintiff succeeded in his action against the defendant for the simple reason that the plaintiff's legal right was violated. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्लेंटिफ जो है एक क्वालिफाइड वोटर था पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, ठीक है, बट एक डिफेंडेंट जो कि रिटर्निंग ऑफिसर था उसको रॉन्गफुली प्लेंटिफ को रिफ्यूज कर दिया वोट करने से. तो ऑल्दो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई लॉस नहीं हुआ एज सच, कोई सब्सटैंशियल हार्म नहीं हुआ उस प्लेंटिफ को, क्योंकि जिस पार्टी को वो वोट करना चाहता था वो अल्टीमेटली वैसे भी जीत गया. बट फिर भी प्लेंटिफ विल सक्सीड इन हिज एक्शन अगेंस्ट डिफेंडेंट फॉर द सिंपल रीजन ये है कि लीगल राइट का वायलेशन हुआ. प्लेंटिफ का लीगल राइट क्या था? राइट टू वोट. राइट टू वोट का वायलेशन हुआ है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो पार्टी को वोट करना था वो जीत गया, फिर भी ही विल सक्सीड इन हिज एक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट, ठीक है. एशली वर्सेस वाइट का केस है. नाउ कमिंग टू अनदर केस, दैट इज इंडियन केस, दैट इज भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1986. In a MLA of Jammu and Kashmir Assembly, the plaintiff was wrongfully arrested and detained by the police. While he was proceeding to assembly further, he was not produced before a magistrate within stipulated period. The act was a violation of both of his fundamental and legal rights. Finally, it was held that the state was liable and was compelled to pay for damages to Mr. Bhim Singh. देखो मिस्टर भीम सिंह कौन था? एक MLA था जम्मू एंड कश्मीर असेंबली का, ठीक है. वो उसको अरेस्ट कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया बाय पुलिस, ठीक है, व्हाइल वाज प्रोसीडिंग टू असेंबली. अब उसको अरेस्ट तो किया ही गया, ठीक है, साथ साथ उसको मैजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर्स प्रोड्यूस भी नहीं किया गया. So there has been both violation of both fundamental and legal right. In this particular scenario, Bhim Singh would be able to win win this, or Bhim Singh would be able to succeed in his action against the state because here the state would be liable, क्योंकि यहाँ पे पुलिस किसके अंडर काम कर रही होती है? स्टेट के अंडर काम कर रही होती है, तो विकेरियसली स्टेट लाइबल होती है, ठीक है. स्टेट वुड बी लाइबल एंड दे वुड बी लाइबल एंड दे वुड बी कंपेल्ड टू पे डैमेजेस और कंपेंसेशन टू मिस्टर भीम सिंह. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर किसी पर्सन का लीगल राइट का वॉयलेशन होता है, इवन दो कोई मॉनेटरी लॉस
मॉनेटरी लॉस और हार्म नहीं भी होता है, डैमेज नहीं भी कॉज होता है इन अ वन वे और अदर, स्टिल जस्ट बिकॉज ऑफ द वायलेशन ऑफ लीगल राइट, a person, a plaintiff can still go to court of law and seek compensation in case of tort. Coming to other maxim, that is damnum sine injuria. Damnum sine injuria means a damage without the violation of legal right. लीगल राइट की वॉल्यूशन के बगैर डैमेज क्रॉस हो रहा है, मतलब यहाँ पे लीगल राइट का वॉल्यूशन नहीं है बट डैमेज कॉज हुआ है, मतलब कोई सब्सटैंशियल हार्म, लॉस एक्सेट्रा टू मनी, प्रॉपर्टी, बॉडी, हेल्थ एक्सेट्रा एक्सेट्रा हुआ है, ये एक्शनेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। मतलब अगर डैमेज कॉज हुआ है बट आपका कोई लीगल राइट का वॉल्यूशन नहीं हुआ है तो यू कांट गो इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ टू सीक कंपनसेशन फॉर द सेम। Coming to the case laws, Gloucester Grammar School case 1410, it was held that plaintiff had no remedy as there was no legal wrong committed by the defendant. As in the case, there is monetary loss to the plaintiff, but there has been no violation of his legal right, hence there is no case of tort. देखो ये हेल्ड हुआ कि प्लेंटिफ के पास कोई रेमेडी नहीं है इस केस में, क्योंकि कोई लीगल रॉन्ग कमिट नहीं किया गया था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मॉनेटरी लॉस हुआ था प्लेंटिफ को, बट कोई लीगल राइट का वॉल्यूशन नहीं हुआ था, इसलिए ये टॉर्ट का केस नहीं है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे फैक्ट्स एक्सप्लेन नहीं किए गए ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल का केस। ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल में क्या हुआ था, देयर वाज अ स्कूल, उसकी उसकी नेबरिंग में, उसकी या फिर मतलब एडजेसेंट में कुछ कॉम्पिटिटिव स्कूल्स क्रिएट हो स्टैब्लिश हो गए थे, या फिर कहो एक स्कूल स्टैब्लिश हो गया था, जिस स्कूल के स्टैब्लिश होने की वजह से जो ऑलरेडी स्टैब्लिश स्कूल था, जो प्लेंटिफ का स्कूल था, उसको उसको अपने फीस रिड्यूस करने पड़े थे, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, तो ऑल्दो प्लेंटिफ को तो यहाँ मॉनेटरी लॉस हो रहा है, बट क्या यहाँ पे जो पर्सन जो स्कूल स्टैब्लिश कर रहा है उस पर्टिकुलर स्कूल के नेबर में, मतलब नेबरिंग प्लेस पे, ठीक है, तो क्या वो इन अ वे इस पर्सन का लीगल राइट का वॉल्यूशन कर रहा है, मतलब प्लेंटिफ की लीगल राइट का वॉल्यूशन कर रहा है? नो। सो वहां पे कोई लीगल राइट का वॉल्यूशन नहीं हुआ है, बट प्लेंटिफ को क्या, स्टिल प्लेंटिफ को मॉनेटरी लॉस हुआ है, बट इस सिनेरियो में प्लेंटिफ कांट गो इन द कोर्ट टू सीक कंपनसेशन एज दिस इज नॉट अ केस ऑफ टॉर्ट। टॉर्ट तभी कमिट होगा जब लीगल राइट का वॉल्यूशन होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि डैमेज कॉज हुआ है या नहीं हुआ है। There's another case, Cheshmore versus Richards, ये तुमने खुद से पढ़ लेना अच्छे से एक बार इसको। I'll be sharing the PDF as I said, मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, you can connect with us on Telegram, I'll share the link as well in the description, वहाँ पे तुम जाके देख सकते हो ना। हाँ, अब कमिंग बैक टू एसेंशियल्स, हमने क्या देखा था कि एसेंशियल क्या देखा था कि पहले क्या होना चाहिए, वहां पे रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, या फिर रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन होना चाहिए डिफेंडेंट के पार्ट पे, उस रॉन्गफुल एक्ट ओमिशन की वजह से कोई लीगल डैमेज हो प्लेंटिफ को, ठीक है। लीगल डैमेज का मतलब क्या है, लीगल राइट का वॉल्यूशन हो, उस लीगल राइट के वॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए, इस नेचर का होना चाहिए कि कोई लीगल रेमेडी तो दे पाए कोर्ट उसको। ये तीनों एसेंशियल स्टैब्लिश हो गए। अब जो पर्टिकुलर डिफेंडेंट है वो लायबल फॉर टॉर्ट होगा, बट डिफेंडेंट के लिए क्या, डिफेंडेंट के लिए टॉर्ट क्या प्रोवाइड करता है, डिफेंडेंट के लिए ऐसा भी तो हो सकता है कि सिनेरियो में डिफेंडेंट की गलती ना हो, although these particular essentials have been established, और हम प्रूव भी कर पा रहे हैं कि ये पर्टिकुलर essentials थे वहां पे पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में, सिचुएशन में, बट क्या पता डिफेंडेंट कुछ अलग सिनेरियो हो, डिफेंडेंट की गलती ना हो, इसीलिए टॉर्ट प्रोवाइड्स few general exceptions to defendant in such scenario. What are those exceptions? When the plaintiff bring an action against the defendant for a particular tort, providing the essentials of that tort, defendant would be liable for the same. मैंने बताया, defendant may, however, even in such a case, avoid his liability by taking the plea of some defense. What are those defenses? Voluntary not pin injuria, plaintiff the wrongdoer, inevitable accident, act of God, private defense, mistake, necessity, statutory authority. I'll be explaining all those defenses in next slide. Moving ahead, voluntary not pin injuria. Voluntary not pin injuria क्या होता है? When a person consents to the infliction of some harm upon himself, he has no remedy for that. देखो, अगर एक person कोई harm कुछ cause होने के लिए खुद ही consent दे दे, हाँ ठीक है, I am fine with it, तो फिर later on he can't complain for the same, right? ये तो morally भी गलत है, right? हम तो normal society में भी देखते हैं। तो similarly ये maximum voluntary not pin injuria कहता है, if a person is giving consent to some infliction of harm upon himself, he has no remedy for the same, ठीक है। For the defense of the consent to be available, the act of causing the harm must not go beyond the limit of what has been consented. देखो यहाँ पे consent की बात की मैंने, किसकी consent की? जो जिस पर्सन को हार्म कॉज हो रहा है उसके कंसेंट की। अब यहाँ पे कंसेंट का डिफरेंस लेने से पहले हमें ये भी देखना होगा कि जो हार्म कॉज हुआ है जिस पर्सन को, जिसने कंसेंट दिया था,
वो हार्म जितना उसने कंसेंट दिया था उसके बियॉन्ड तो कॉज नहीं हो रहा है ना। अगर उसके बियॉन्ड कॉज होगा तो ये पर्टिकुलर डिफेंस काम नहीं करेगा, ठीक है। जितना उसने कंसेंट दिया था उतना हार्म कॉज हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में डिफेंडेंट कैन क्लेम दिस डिफेंस, सॉरी, हाँ, डिफेंडेंट कैन क्लेम दिस डिफेंस। अब वांटेड नॉट पेड इंजूरिया का मतलब मैंने सिंपल समझाया कि अगर पर्सन किसी पर्टिकुलर हार्म के लिए खुद हामी भर दे, खुद कंसेंट दे दे, लेटर ऑन वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके कंप्लेन नहीं कर सकता है कि इस पर्सन ने मुझे हार्म कॉज किया, अब मुझे कंपनसेशन दो। तो वहां पे तो डिफेंडेंट बोलेगा ना कि यू द वन हु कंसेंटेड फॉर द सेम। वहां पे डिफेंडेंट वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस लगाएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। प्लेयर इन अ गेम ऑफ हॉकी हैज नो राइट if he is hit while the game is being lawfully played, but if there is a deliberate injury caused by another player, defense of voluntary cannot be pleaded। देखो, एक हॉकी का गेम चल रहा है, एक कोई प्लेयर है, प्लेयर के पास कोई राइट नहीं है कि अगर गेम लॉफुली गेम खेल रहे हैं और वो हर्ट हो जाता है तो उसके पास कोई राइट नहीं है वो क्लेम करे कंपनसेशन, या वो यू नो ही डज नॉट हैव अ राइट ऑफ एक्शन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बट अगर कोई डेलिबरेटली उसको इंजरी कॉज करता है, मतलब उसने उसके लिए तो कंसर्न नहीं दिया था, अगर डेलिबरेटली कोई इंजरी कॉज करता है तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में वारंटी वाला, जो वारंटी नॉट इंजूरिया वाला जो हमारा डिफेंस है, वो प्लीड नहीं कर सकते हैं। We have a case law as well. This is a landmark case, Hall versus Brookland Auto Racing Club, 1982. Plaintiff was a spectator at a motor car race due to collision between two racing cars. One of it rammed into spectator's stand and injured the plaintiff. The court held that the organizer were not liable as the plaintiff impliedly took the risk of injury. देखो, ये हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब बहुत ही लैंडमार्क केस है। इनफैक्ट जब तुम टॉट क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वॉलंटरी ऑफ इंजीरिया का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो हमेशा देखोगे कि क्वेश्चन हमेशा मिलेगा कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो स्पेक्टेटर है उसने टिकट खरीदा है, तो हम वहां पे कोर्ट ये अज्यूम करता है कि वो इम्प्लाइडली दे टुक रिस्क ऑफ एनी इंजरी जो उस पर्टिकुलर गेम खेलने में जो भी कॉज होगा, वो इम्प्लाइडली वो इंजरी ले लेता है, ठीक है, जस्ट बाई बाइंग द टिकट्स, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे भी वही था, प्लेंटिफ एक स्पेक्टेटर था मोटर कार रेस में। अब दो रेसिंग कार्स थे, आपस में कोलाइड हो जाते हैं एंड 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 समहाउ रैम्ड इनटू स्पेक्टेटर स्टैंड एंड प्लेंटिफ क्या होता है, इंजर हो जाता है। तो प्लेंटिफ कंपनसेशन जब मांग जाता है कोर्ट में, तो कोर्ट ने कहा कि ऑर्गेनाइजर्स वोंट बी लायबल क्योंकि तुमने खुद ही ये रिस्क, you impliedly took this particular risk of injury by just buying the ticket, okay. We do have two exceptions to this chilling exception, voluntary not injuria. First is rescue cases. When the plaintiff voluntarily undertakes a risk to rescue somebody from an imminent danger created by the wrongful act of a defendant, defendant cannot set up a defense of voluntary not injuria against the plaintiff. देखो, जब plaintiff voluntarily कोई रिस्क लेता है किसी को रेस्क्यू करने के लिए, और रिस्क तब लेता है when there is a imminent danger, उस इमिनेंट डेंजर से बचाने के लिए वॉलंटरी वो रिस्क अंडरटेक करता है किसी को रेस्क्यू करने के लिए। उस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम ये नहीं बोल सकते तुमने खुद तो वॉलंटरी रिस्क लिया था, आई वोंट बी पेइंग एनी कंपनसेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेस्क्यू केसेस के अंदर आ जाएगा और दिस विल बी एक्सेप्शन टू वॉलंटरी नॉट फिट इंजरिया, ओके। Another is Workmen Compensation Act. An employee cannot escape from his liability arising out of his negligence ensuring that employee's safety. He cannot set up the defense of voluntary of injuria. देखो, एम्प्लॉयर अपनी लाइबिलिटी से स्केप नहीं कर सकता है उस सिनेरियो में जहां पे वो उसने एम्प्लॉय की सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा है, जहां क्योंकि वो एम्प्लॉय की सेफ्टी का ख्याल रखना उसका ड्यूटी है। अगर वो ख्याल नहीं रखता है उस पर्टिकुलर सिनेरियो में, वो अपनी लाइबिलिटी से स्केप नहीं कर सकता है। ना वो ये कह सकता है कि तुमने वॉलंटरी रिस्क अंडरटेक किया था बाय जस्ट अग्रीइंग टू वर्क अंडर दिस फैक्ट्री और वर्क अंडर दिस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसका भी कोई ड्यूटी है, कुछ ड्यूटी है एम्प्लॉय की सेफ्टी का ख्याल रखने का, ठीक है। कमिंग टू अनदर एक्सेप्शन, पहला क्या पढ़ा, वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया। सेकंड एक्सेप्शन क्या है, इनएविटेबल एक्सीडेंट। एक्सीडेंट मींस एन अनएक्सपेक्टेड इंजरी एंड इफ द सेम कुड नॉट हैव बीन फोरसीन एंड अवॉइडेड इन स्पाइट ऑफ रीजनेबल केयर ऑन द पार्ट डिफेंडेंट, इट इज इनएविटेबल एक्सीडेंट। एक्सीडेंट मतलब क्या होता है, कोई अनएक्सपेक्टेड इंजरी कॉज कर दिया मैंने, ठीक है, इंजरी कॉज हो गया, और वो इंजरी इस वजह से कॉज हुआ कि हम उसको फोरसी भी नहीं कर पाए, हम उसको अवॉइड भी नहीं कर पाए। अगर हमने सारा रीजनेबल केयर लिया था अपने पार्ट में, बट फिर भी वो इनएविटेबल था, हम उसको रोक ही नहीं सकते थे,
तो वो अनएक्सपेक्टेड इंजरी कॉज हो गया, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में डिफेंडेंट वोंट बी लायबल. होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल, लेट मी ड्रिंक वाटर. या सो आई वाज सेइंग इनएविटेबल एक्सीडेंट में क्या होता है कि कोई अनएक्सपेक्टेड इंजरी कॉज हो जाता है, जिसके लिए जिस जो हम फोरसी नहीं कर पाते, जिसको हम अवॉइड नहीं कर पाते, इन स्पाइट ऑफ टेकिंग reasonable care on my part. That is inevitable. That is inevitable accident. If the plaintiff has an unexpected injury owing to an unforeseen and inevitable event in the spite of reasonable care on the part of defendant, the defendant has to prove that he neither intended to injure the plaintiff nor had the means to injure the by taking reasonable care. देखो, यहाँ पे प्लेंट ये इनएविटेबल एक्सीडेंट का केस तब तब ये डिफरेंस तब लगेगा जब प्लेंटिफ को कोई अनएक्सपेक्टेड इंजरी हो गया है, जिससे वो इंजरी जिसको हम फोर्सी नहीं कर पा रहे थे, वो इनएविटेबल इवेंट की वजह से हुआ. डिफेंडेंट ने पूरा रीजनेबल केयर लिया. डिफेंडेंट रीजनेबल केयर कैसे प्रूव करेगा? वो ऐसे प्रूव करेगा कि ही नेवर इंटेंडेड टू इंजर द प्लेंटिफ. उसका इंटेंशन कभी नहीं था प्लेंटिफ को इंजर करना, ना ही उसने ऐसा मींस को अडॉप्ट किया टू इंजर द प्लेंटिफ. in spite he adopted the means to avoid the injury by taking the reasonable care on his part. उस पर्टिकुलर सिनेरियो में फिर भी अगर प्लेंटिफ को इंजरी कॉज होता है एंड अनएक्सपेक्टेड इंजरी कॉज होता है, तो वो इनएविटेबल एक्सीडेंट के पार्ट में आ जाएगा, डिफेंस में आ जाएगा. There's a case, Stanley versus Powell, 1891. One of the members of the shooting party accidentally shot at another member, mistaking his movement for that of the animal. The court held that the injury was an accident. देखो, शूटिंग पार्टी के मेंबर्स थे, ठीक है, वो एक्सीडेंटली शूट कर रहे थे किसी दूसरे मेंबर को, ऑल्दो दे वांटेड टू शूट फॉर एनिमल, लेकिन वो मिस्टेकनली शूट कर देते हैं. he has adopted or in taken proper care on his part. In spite of that fact, he injured another member. उस पर्टिकुलर सिनेरियो में कोर्ट ने कहा कि इंजरी जो कॉज हुआ वो एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, इट विल कम अंडर द एक्सीडेंट. There's another case, Brown versus Kendall. You can read it further later on. Coming to other exception, that is act of God. Act of God refers to some natural calamity such as heavy rainfall, storms, earthquakes and volcanoes. देखो, एक्ट ऑफ गॉड का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी नेचुरल कैलामिटी हो रहा हो, जिस जैसे फॉर एग्जांपल हैवी रेनफॉल है, स्टॉर्म्स है, अर्थक्वेक्स है, वोल्केनोस है. these are some scenarios जो एक्ट ऑफ गॉड में आते हैं. मतलब रेनफॉल हैज टू बी वेरी हैवी, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टॉर्म आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या वोल्केनो इरप्ट हो गया, मतलब जिसका कोई एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं था, वो एक्ट ऑफ गॉड में आएगा. दो एसेंशियल्स है टू एस्टैब्लिश दिस डिफेंस. फर्स्ट इज दे मस्ट बी वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्सेस, मतलब ह्यूमन फोर्सेस वर्क नहीं कर रहा हो, ह्यूमन फोर्सेस की वजह से कुछ क्रिएट नहीं हुआ हो डिस्टर्बेंस, बल्कि नेचुरल फोर्सेस की वजह से हुआ हो. द occurrence must be extraordinary and not one which could be anticipated and reasonably be guarded against. अक्रेंस कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है जिसको एंटिसिपेट नहीं किया सकता हो, या जिसको रीजनेबली गार्ड नहीं कर सकते थे, जिससे रीजनेबली हम बच नहीं सकते थे, मतलब जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं भी नहीं कर पा रहे थे, जिससे हम रीजनेबली बच भी नहीं सकते. कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अक्रेंस हुआ है, तो वो एक्ट ऑफ गॉड में आएगा. वी हैव अ लैंडमार्क केस, दैट इज निकोलस वर्सेस मार्सलैंड, 1876. There, the defendant created some artificial lake on his land by damming some natural streams. Once there was an extraordinary heavy rainfall, stated to be heaviest in the human memory, as a result of which the embankments of the lakes gave away. The rush of water washed away 4 bridges belonging to the plaintiff. It was held the defendant were not liable as the loss had occurred due to act of God. बिकॉज वर्सेस मार्सलैंड में क्या होता है कि डिफेंडेंट ने कुछ आर्टिफिशियल लेक्स क्रिएट किए थे अपने लैंड में, कुछ नेचुरल स्ट्रीम्स को डैम करते हुए. अब क्या होता है कि ऑल्दो उसने जो आर्टिफिशियल लेक क्रिएट किया होगा, उसने सारे वॉल्स वगैरह सब स्ट्रॉन्ग बनाए होंगे, बट बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैवी रेनफॉल, ये की वर्ड्स यूज होते हैं एक्ट ऑफ गॉड में, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैवी रेनफॉल की वजह से, जो कि दैट वाज द हेवीएस्ट इन ह्यूमन मेमोरी, उस वजह से बैकमेंट्स क्या होते हैं, टूट जाते हैं, और पानी जो रश ऑफ वाटर की वजह से प्लेंटिव का जो ब्रिज है वो वॉश अवे हो जाता है, मतलब वो टूट जाता है, ठीक है. तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में डिफेंडेंट वोंट बी लायबल, क्योंकि ये जो लॉस अकर हुआ है प्लेंटिफ को, इट वाज बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ गॉड, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल फोर्सेस वर्क कर रही थी, यहाँ पे सिचुएशन जो था वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था. नो वन कुड एंटिसिपेट द सेम एंड रीजनेबली उससे बच नहीं, रीजनेबल केयर नहीं
केयर लेने के बाद भी हम बच नहीं सकते थे उससे, ठीक है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था और बिल्कुल ही अनएंटिसिपेटेड था, ठीक है। Yeah, so next exception is plaintiff the wrongdoer. There's a legal maxim which governs this exception, that is ex torpe causa non alter actio, which means that immoral cause से कोई action arise नहीं होता है। मतलब जहाँ पे plaintiff कोई एक unlawful contract था, उस वजह से plaintiff वहाँ पे खुद गलत है, तो he will generally not succeed in his action. This is general case. बट ये प्रिंसिपल ये भी कहता है कि जस्ट बिकॉज प्लेंटिफ वाज अ रॉन्ग डूअर डजंट मीन दैट प्लेंटिफ डिफेंडेंट ने अपने पार्ट पे जो रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया है उसके लिए उससे कोई कंपेंसेशन या कोई रिकवरी नहीं कर सकता। प्लेंटिफ फिर भी कर सकता है, बट वो होते ना, वहां पे जो लाइबिलिटी है वो डिवाइड हो जाएगी। Now, there's a landmark case of Bird versus Holbrook. या पढ़ लेना तुम लोग से PDF से बाद में, क्योंकि because we have the paucity of time. So considering that, I'm moving ahead. And then there's a next defense, that is private defense. The law permits use of reasonable force to protect one's property or person. If the defendant uses the force which is necessary for self-defense, he will not be liable for the harm caused thereby. The use of force justified only for the purpose of defense. There should be imminent threat to the person's safety or property. See, if there's an imminent threat on the an imminent threat to my body or to my property, then I can use some force on my part in order to protect myself. वो जो फोर्स यूज करूंगी मैं, वो फोर्स क्या आएगा, वो फोर्स सेल्फ डिफेंस में आ जाएगा। उस और उस फोर्स की वजह से जो हार्म कॉज होगा वो उसके लिए आई वोंट बी लायबल, बिकॉज वो मैं सेल्फ डिफेंस कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल, ए वुडंट बी जस्टिफाइड इन यूजिंग फोर्स अगेंस्ट बी merely because he thinks that B would attack him someday or not. The force can be justified by the way of retaliation after the attack is already over. See, यहाँ पे the मैं यहाँ पे कहा कि force जो threat है, मतलब जो danger है, that has to be imminent, मतलब अभी होना चाहिए, तुरंत तुम्हें वो threat दिमाग में apprehend कर रहे हो तुम, तब it would be right. But अगर for example जस्ट बिकॉज आई हैव एप्रीहेंशन कि बी वुड अटैक मी समडे, मैं उस पर अटैक कर देती हूँ, तो वो सेल्फ डिफेंस पर नहीं आएगा। नेदर कि उसने मुझे अटैक किया और मैं रिटेलिएट कर रही हूँ बाद में, वो भी सेल्फ डिफेंस में नहीं आएगा। बट जिस वक्त वो अटैक कर रहा है, मैं खुद की बॉडी को सेव करने के लिए या खुद की प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए वॉट एवर स्टेप्स आई टेक और वॉट एवर फोर्स आई यूज, दैट विल कम अंडर डिफेंस ऑफ सेल्फ डिफेंस। ओके, now coming to another defense, that is mistake whether of fact or law is generally no difference to an action of tort. चाहे mistake of fact हो या mistake of law हो। mistake of fact मतलब तुम्हें कोई particular terms या conditions नहीं पता है, and mistake of law कोई तुम्हें law नहीं पता है, उस वजह से तुम्हारा तुमसे कोई गलती हो जाती है। तो दोनों ही, although mistake of law is no excuse, mistake of fact can be excuse, but both of them is no difference to an action of tort. When a person willfully interferes with the rights of another person, it is no difference to see that there was some justification for the same, when in fact such justification existed. देखो, अगर कोई person willfully किसी और की right के साथ interference कर रहा है, तो उस particular scenario में कोई difference नहीं है, कोई difference नहीं है, कोई justification नहीं वो seek कर सकता है, वो justify नहीं कर सकता है उस particular act को, क्योंकि उसने वो पर्टिकुलर इंटरफेरेंस क्रिएट किया है। ओके, इन irrespective of the fact justification existed, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं। entering the land of another thinking that to be one's own is trespass। देखो, अगर किसी और का लैंड है, मैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या हो गया, मुझे लगा कि मेरा खुद का ही जमीन है, मैं उस पर चला गया, तो वो मेरी ट्रेसपास हो गया, because I have already interfered with the right of the another person. Similarly, there's another example, you can see them later on. Moving ahead, there's a next defense, that is necessity. An act causing damage if done under necessity to prevent a greater evil is not actionable even though harm was caused intentionally. कोई act की वजह से डैमेज कॉज होता है, वो डैमेज इसलिए होता है क्योंकि देयर वाज अ नेसेसिटी टू प्रिवेंट अ ग्रेटर एविल। ग्रेटर एविल से बचने के लिए कोई छोटी सी डैमेज कॉज होती है, तो उस पर्टिकुलर डैमेज के लिए वी कांट बी दैट्स अ वेरी, वो डैमेज के लिए द पर्सन कांट गो इन द कोर्ट ऑफ लॉ टू सीक क्लेम और टू सीक कॉम्पेंसेशन, बिकॉज
क्यों? क्योंकि दैट वाज द नीड ऑफ आर, इवन दो हार्म इंटेंशनली क्यों ना कॉज हुआ हो. नेसेसिटी शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम प्राइवेट डिफेंस. इन नेसेसिटी देयर इज एन इन्फ्लिक्शन ऑफ हार्म ऑफ on an innocent person, whereas in private defense harm caused to a plaintiff who himself is a wrongdoer. देखो यहाँ पे क्या होता है कि प्राइवेट डिफेंस में यूजुअली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इज अ फाइट, तो फाइट में वहां पे प्लेंटिफ, प्राइवेट डिफेंस में प्लेंटिफ इज आल्सो अ रॉन्ग डूअर, लेकिन वहां पे प्लेंटिफ खुद को प्रोटेक्ट कर रहा होता है. या फिर देखो प्राइवेट डिफेंस में क्या होता है कि प्लेंटिफ रॉन्ग डूअर होता है, डिफेंडेंट खुद को प्रोटेक्ट कर रहा होता है. डिफेंडेंट क्योंकि प्लेंटिफ उसको इन अ वे हार्म कॉज कर रहा है, ठीक है, तो उस हार्म से बचने के लिए डिफेंडेंट खुद को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहा होता है. नेसेसिटी में क्या होता है कि कोई इनोसेंट पर्सन को कोई हार्म होने वाला है, कोई बड़ा हार्म, ठीक है, कोई हार्म कॉज हो गया, कोई इनोसेंट पर्सन को कोई हार्म कॉज हो गया, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू प्रिवेंट अ ग्रेटर इविल, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई कॉज्ड अ harm, I caused some damage to innocent person. तो उस पर सिनेरियो में कि मेरा मेरा इंटेंशन क्या है, my intention is just to prevent a greater evil, and उसकी वजह से because there was a need of our, I somehow harm caused harm to innocent person. That's the difference between necessity and private defense. Necessity is also different from inevitable accident because in necessity the harm is an intended one. हार्म जो कॉज वो करते हैं हमें पता होता है कि हार्म कॉज होने वाला है, बट बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ आर वी हैव टू डू दैट. इसलिए ये होता है नेसेसिटी. लेकिन इमिटेबल एक्सीडेंट में क्या होता है, हमें हार्म जो हम इंटेंशनली नहीं करते हैं, बट हम उसको रीजनेबली फोर्सी नहीं कर पाते हैं, इवन आफ्टर रीजनेबल केयर हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वो इनएविटेबल एक्सीडेंट होता है. ठीक है. स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, कोई अगर हार्म कॉज होता है किसी एक्ट से जो एक्ट ऑथराइज है बाय लेजिस्लेचर और बाय लेजिस्लेशन और बाय सम अथॉरिटी, उस वजह से कोई हार्म कॉज होता है, मेरा एक्ट जो ऑथराइज है बाय सम अथॉरिटी बाय सम लेजिस्लेशन, और उस एक्ट की वजह से कोई हार्म कॉज होता है, वो एक्शनेबल नहीं होता है क्योंकि उसको स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मिली होती है, उसको स्टैट्यूट ऑथराइज करता है वो पर्टिकुलर एक्ट होने के लिए. Even though it would be a tort, but there is no action for such tort. For example, if a railway line is constructed, there may be interference with private land when the trains are run. There also may some incidental harm due to noise, vibration, smoke, emission, or spark, etc. No action can lie either for interference with the land or incidental harm, except for the payment of compensation which the Act itself may have provided. देखो, अगर कोई रेलवे लाइन की कंस्ट्रक्शन की वजह से जो जो नियर बाय जो लोग रिसाइड कर रहे हैं, रेसिडेंट हैं, उनको किसी तरह से इंटरफेरेंस हो रहा है उनके एंजॉयमेंट में, चाहे वो ट्रेन्स के चलने की वजह से हो या कोई इंसिडेंटल हार्म जैसे उसकी नॉइज, वाइब्रेशन या स्मोक इमिशन की वजह से हो, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में द पीपल रिसाइडिंग देयर कांट क्लेम कंपनसेशन बिकॉज दैट particular act comes under statutory authority. Okay, this is what I will be teaching today. इसके आगे I do have some topics like जो हमें पढ़ना है, जैसे vicarious liability हो गया, absolute liability, strict liability, etc etc. vicarious liability के खुद के कुछ exceptions हैं, strict liability के exceptions हैं, etc etc. वो मैं next class में discuss करूँगी. Part 2 will come very soon. That's it for today. Please like, share and subscribe our channel. Bye bye. See you tomorrow.